پیر لا الہ استاد مولا ابوالفضل عباس پاک مسلم ابن عقیل بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد خوشنودی تسکین قلب لا الہ تعویذ حسین ابن علی امیر المومنین جل جلالہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإن حتى تسكنه ورزقك طوعا وتمتعه فيها طويلا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد يا سيدتي يا مولتي أدركني بحق أبو الفضل العباس عليه السلام اللهم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على دائرة الوجود ونقطة المقام المحمود وحامل التوحيد وكامل التوحيد وجسد التوحيد علي ابن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على حجاب الوحدة سيدة النساء العالمين ثم الصلاة والسلام على وتحية والإكرام على آية الله الكبرى حجة الإسلام والمسلمين ولي العصر آقا امام زمان اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن الله على أجمعين ومنكر فضائلهم ومصائبهم وبلايتهم أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين نعرہ حیدری بينهما برزخ لا يبغيان بلندر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد دعائے آل محمد کا کریم مالک ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ابر حسین بہرکل حسین جتنے بھی اس ذکر میں مانگنے کے لیے آئے ہیں میرا مالک اس ذکر سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں میرا مالک اس خوشی کو آپ تمام کی ترجمانی کرتے ہوئے تمام کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کی زبان بنتے ہوئے میں مبارکباد دیتا ہوں پردہ غیبت میں بیٹھے مطلق العنان مولا کو مدبر الامور مولا کو میرا مالک اس خوشی کو اپنی بارگاہ احدیت میں قبول فرمائے منظور فرمائے اور اس خوشی کا صدقہ میرا مالک اس گھر کو وفات بریاتی رضی و سماوی سے میرا مالک اہل خانہ کو ہمیشہ سوائے غم حسین کے کوئی غم عطا جو بھی اہل خانہ کے بیمار ہیں میرا مالک ان کو صحت عطا فرمائے دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود سارے صاحبان مل کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد یقیناً آج کا دن عید اعظم ہے آج وہ دو نور ایک ہوئے جس کی وضاحت میں ابھی گفتگو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کیونکہ یہ کائنات آدم و عالم کا ایک منفرد عقد ہے جس میں چند خصوصیات ایسی ہیں جو کسی نبی یا مرسل کو بھی عطا نہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ اور منبر کی دیانتداری کے ساتھ آدم سے لے کے معصومین تک 11 معصومین تک چند ایسی خصوصیت ہیں جو کسی کو بھی عطا نہیں یعنی کہ کسی بھی معصوم کا رشتہ خدا نے خود نہیں مانگا اور جو رشتہ مانگا گیا اس رشتے کی وجہ سرکار امیر المومنین نہیں سبب بطول ہے وجہ بطول ہے اور دوسری شان یکتائی کی میں بیان کروں گا تو آپ یقیناً اس سے لطف لیں گے اور آپ تائید بھی فرمائیں گے
तारीख़ आदम व आलम में मासूमीन की तारीख़ इस्मत में ये वाहिद अक्द है, किसी भी मासूम की बीवी ऐसी मासूमा नहीं हत्ता कि किसी नबी या मुरसल या सरकार खातम जद्दल हुसैन की भी कोई ज़ौजा ऐसी मासूमा नहीं जैसी ये सैयदा मासूमा है। बेशक बेशक। और अक्द पढ़ा भी खुदा ने, भी खुदा ने, क्योंकि रसूल को जो 2 महराज हुई। अब ये जुमला कहूंगा, इसी पे मैं बुनियाद रखने लगा हूं आज के मौजू की, और मुफरत तरीके से मुझे सैयदा की इज्जत आपके सामने पढ़नी है। और ये 2 महराज रसूल को हुई। पहली महराज में बतूल अता की, दूसरी में खुदा ने बतूल रसूल से मांगी। पहली महराज में अता की है, इन्ना आतैना कल कौसर। ये जो तफसीर है कि हमने तुझे कौसर अता की, मासूम फरमाते हैं कौसर से मुराद है हमारी जद्दा, और मासूम ही का जुमला है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। मासूम फरमाते हैं जो हमारा नाना मेराज पे गए थे, जन्नत देखने के लिए नहीं गए थे, अंबिया को नमाज पढ़ाने के लिए नहीं गए थे, कौन सा ऐसा जरूरी काम था। मासूम से पूछा गया मौला मेराज में राज क्या था, फरमाया खुदा ने बगैर किसी वसीले के नूर बतूल को सुल्ब रिसालत में मुंतकिल किया। बतूल हवाले की रसूल की, बतूल रसूल के हवाले की, और जब रसूल के हवाले की जुमला मासूम का है, जुबान यहूदी होकर मर जाए अगर जुमला मासूम का ना हो। इतनी बड़ी कसम मिंबर पे मैंने सिर्फ आप लोगों के जहनों में सदाकत का सिक्का राइज करने के लिए दी है। मासूम से पूछा गया कि मौला फिर जब मेराज के पर्दे में जाके बतूल अता हुई थी, उस वक्त कोई गुफ्तगू हुई थी? मेरे नवे इमाम ने फरमाया उस वक्त तौहीद ने कहा था, ए मोहम्मद मैं तुझे जहमत ना देता, अगर मेरा बदन होता मैं खुद आता। जिस्म नहीं रखता, मैं जिस्मानियत से मुबर्रा हूं। लिहाजा मैंने इसलिए रिश्ता मांगने के लिए तुझे बुलाया है, वरना दस्तूर ये है कि जाया जाता है। फरमा मैंने तुझे बुलाया है। मासूम फरमाते हैं कि फिर मेरे जद ने कहा कि अगर आपने मुझे बुलाया है तो फिर मैं क्या सवाल कर सकता हूं कि जिस जबरील के जरिए से कुरान भेजा था, उस जबरील के जरिए से पैगाम क्यों नहीं भेजा? मुझे चादर सैयदा की कसम है, इतना जुमला कहना था कि तूने जबरील के जरिए से पैगाम क्यों नहीं भेजा? आवाज वहदत आई, नूर तौहीद से आवाज आई, ला जबरील इस्मतैन है। जबरील की जुबान में इतनी इस्मत नहीं जबरील में इतनी इस्मत नहीं। जियो जियो, क्या बात है, क्या बात। अब मैं जब यहाँ जाके मैंने मासूम का जुमला पढ़ा तो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा जो जबरील कुरान ला सकता है, क्या बात। फिर बतूल, इसका मतलब बतूल कुरान से भी ज्यादा पाक है। और यहां पर अगर इसी बहस का दरवाजा आगे खोलेंगे तो फिर बात कहीं और चली जाएगी। मासूम का जुमला, मासूम ने फरमाया जबरील इसलिए नहीं लेके आया पैगाम क्योंकि मासूमा का रिश्ता था और जबरील की जुबान में इतनी तहारत नहीं थी, क्योंकि जो दरवाजे पे दर्जी बन के जाता हो, नौकरी की घर से जाता हो, वो इतनी अहम जिम्मेदारी ले नहीं सकता था। जबरील को ये जिम्मेदारी नहीं दी गई, जबरील को ये मनसब नहीं सौंपा गया। नूर तौहीद ने खुद रसूल से एक रिश्ता मांगा। तो फिर यहाँ पर जबरील की जुबान में अगर तहारत नहीं तो फिर जबरील तो कुरान लेके आया था। इसका मतलब है कि सैयदा वो मासूमा है, सैयदा वो मासूमा है जिसकी इस्मत इतनी वसी है कि जबरील की जुबान नूरानियत पे भी नहीं आ सकती। तो फिर बात का अकद दरवाजा अगला खुल जाएगा। सैयदा है महकूमा, वारिस अली है हाकम, तो फिर मुझे बोल के बताओ जिसकी महकूमा इतनी पाक है उसका महबूमा का जुबान है जबरील पे नाम नहीं आता। ये शर्फ है कि वो नाम हम ले रहे हैं। जिस दिल में अली नहीं वो ऐसे ही है जैसे काबा में 360 बुत। अली के बगैर दिल बुत खाना हो सकता है, खाना खुदा नहीं हो सकता। मासूम ने फरमाया कि खुदा ने खुद
नूर बतूल को रसूल से मांगा और आवाज आई, ऐ रसूल मामलात यही तय करके जाने, महर भी मैंने देना है। मैं फर्श वाला निकाह नहीं पढ़ रहा। और यहाँ पे मैं जुमला कहूँ, 7 अक्त हुए हैं, 7 जगह पे खुतबा निकाह पढ़ा गया है मेरे मौला, 7 जगह पे खुतबा निकाह पढ़ा गया है, 7 जगहों पे खुतबा निकाह पढ़ा गया है। चंद चेहरों में परेशानी है, मैं वजाहत कर देता हूँ मासूम का जुमला, और पूरी जिम्मेदारी के साथ फरमाया मासूम ने 7 जगहों पे मेरी जद्दा और मेरे जद का खुतबा निकाह पढ़ा गया। पहले आसमान पे इसराइल ने पढ़ा, दूसरे पे दरदाइल ने पढ़ा, तीसरे पे सरसाइल ने पढ़ा, चौथे पे रहील ने पढ़ा, पांचवे पे इराइल ने पढ़ा, छठे पे महमूद ने पढ़ा, सातवें जबरील ने पढ़ा, बैतुल मामूर पे मंसूर ने पढ़ा, फर्श पे मोहम्मद ने पढ़ा, अर्श पे खुदा ने पढ़ा। अब तो होने से पहले चंद मामला तय किए जाते हैं। महर की रकम का तयन निकाह पढ़ने से पहले होता है। अब जो निकाह जिनके दरमियान बातचीत हो रही है, वहां तीसरा तो है ही कोई नहीं। वाह वाह वाह। लिख दिया किताबों में, रसूल ने अपनी बेटी को जहेज में क्या दिया, एक मशकीजा, एक चिटाई, एक मटका, 2 प्याले। तेरे जैसे कमी की जुर्रत क्या थी, तू बतूल के जहेज में निकाला। सैयदा का मेहर बताऊं, मेरे सर पे कुरान, मैं तुझे सैयदा का मेहर बताऊं। मेहर किसने दिया था? अबू तालिब ने दिया था। मुझे चादर सैयदा की कसम है, निकाह फर्श पे नहीं अर्श पे हो रहा है। बात हो रही है अल्लाह और मोहम्मद के दरमियान। फरमाया मामला यही तय करके जाना है, महर भी मैंने देना है, महर भी मैंने देना है। मुझे चादर सैयदा कसम, बार बार कसम सिर्फ बीबी की वकालत के लिए दे रहा हूं। जब कहा महर भी मैंने देना है तो नूर तौहीद की आवाज आई, मांग महर क्या मांगता है। आवाज रिसालत आई, तुझसे क्या मांगना है, तू सबू भी है, तू कदूस भी है, तू रहमान भी है, तू रहीम भी है। इतना जुमला कहना था, ये आवाज कुदरत आई तेरी इस आजी पे, फिर मैं महर ऐसा देता हूं आज से खुदाई ज़हरा के नाम कहना नहीं है। रसूल के चेहरे में मुस्कुराहट आई, आवाज आई, अगर महर मंजूर है फिर खुतबा निकाह शुरू करूं। अलहम्दो रिदाई वल अज़मतो किबरियाई वल सनतो शहाई। मैं तौहीद का खुतबा पढ़ा, जो सैयदा की आगे तुम्हें अल्लाह ने खुतबा पढ़ा, वो खुतबा पढ़ा हूं। खुदा ने कहा फिर सुन, अगर महर मंजूर है फिर मैं खुतबा पढ़ता हूं। अलहम्दो रिदाई, अलहम्द मेरी चादर है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। नहीं, जैसा हक बनता है वैसा सुना। कलम नूर का हो, दामन हूर का हो, जुमला लिखे। सोने की कलम हो, काबे के दीवार पे जुमला लिखा जाए। रोक रोक के जुमला पढ़ता हूँ। खुदा ने कहा खुतबा निकाह में अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा खुतबा पढ़ा सैयदा के हक में। अल्हम्दुलिल्लाह, अलहम्द मेरी चादर है। खुदा कह रहा है अलहम्द मेरी चादर। यहां रोक दूंगा बात, वसूल करोगे तो आगे बढ़ो। बिस्मिल्लाह। क्योंकि तौहीद के खुतबे के बाद मैंने जबरील का खुतबा पढ़ना। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का अलहम्द मेरी चादर है। पूछा गया 5वें मासूम से, 5वें मासूम से पूछा गया मौला ये खुदा ने ये क्यों कहा कि मेरी चादर है? फरमाया तूने हदीस कुदसी का इनकार कर दिया। कुन तो कंज़न मख्फिया, उसने कहा मैं एक छुपा हुआ खजाना। बात मैं कहीं और लेके जाना चाहता हूँ, और वसूल करोगे तो मैं ये वादा करता हूँ जिस्म यहाँ होंगे तुम्हारे, रूहें दहलीज़े नजफ पे आएंगी। रूहों को प्रवास करवाना और मार्फत के परिंदे को प्रवास करवाना और शक की वादी में गुम ना होना, सैयदा से मार्फत मांगना कि बीबी हमें वहां पहुंचा जो तेरी मार्फत का हक है। खुदा ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, अलहम्द मेरी चादर है। मासूम ने फरमाया वो चादर है
جس کے نیچے توحید چھپی ہے. رسول نے فرمایا الحجابۃ الوحدۃ الفاطمہ، یہ جو وحدت کی چادر ہے یہ میری دادی فاطمہ ہے، یہ میری دادی فاطمہ. اب جملہ سننا، اب معصوم نے نص دے دی، اب جملہ آسان ہو گیا. خدا نے کہا الحمدللہ، پانویں بادشاہ نے کہا یہ چادر ہے سیدہ. اس کا مطلب خدا کہہ رہا ہے سیدہ میری چادر ہے، سیدہ میری چادر ہے. اس کا مطلب الحمد سے مراد سیدہ ہے، الحمد سے مراد سیدہ ہے. قرآن شروع ہوا بسم اللہ سے، آگے ہے الحمد، بسم اللہ علی ہے الحمد. الحمد سیدہ ہے، حمد نہیں کہا، الحمد. کسی بھی عربی سمجھنے والے کے جا کے سامنے پوچھنا کہ عربی زبان میں جب کسی بھی لفظ کے ساتھ الف لام آئے تو یہ الف لام حرف جنس کا ہے، یہ اس لفظ کی خصوصیت کا پتہ بتاتا ہے کہ یہ عام نہیں، یہ خاص ہے. والعصر عام اثر نہیں، کوئی خاص اثر. والفجر کوئی عام فجر نہیں، ہر فجر کی قسم نہیں کھا رہا، کوئی خاص فجر. ہر عصر کی قسم نہیں کھا رہا، کوئی خاص. پورے قرآن کا جا کے مطالعہ کرو، جہاں جہاں الف لام آئے گا الف لام سے مراد کوئی خاص اشارہ. اب یہاں خدا کر الحمد، یہ نہیں کہا حمد رب العالمین، حمد ہے اس کی جو عالمین کا رب. الحمد، الحمد الف لام بتا رہا ہے کہ حمد کوئی خاص ہے. اور معصوم نے فرمایا یہ اب یہ بات یہاں پہ بات آ کے رک گئی، الحمد ہے سیدہ، رک گئے نا یہ بات یہاں پہ آ کے. اب نبی کی حدیث سنا تو لطف آئے گا. الحمد سے مراد اگر سیدہ ہے، اسی لیے رسول نے کہا تھا لا صلاۃ الا بفاتحہ الکتاب، تمہاری نماز قبول نہیں ہو سکتی اگر تم نے فاتحہ کو نہ پڑھا. لفظوں سے قرآن پڑھو گے تو پھر اور، لفظوں کا ترجمہ کرو گے تو پھر اور ہے. لفظوں کے ترجمے کے ساتھ جھگڑے، اختلافات، انسان کی نظر کے ساتھ ذرا قرآن پڑھو. الحمدللہ رب العالمین. زہرا ہے بسم اللہ بسم اللہ، وہ جو مالکین اور جو عالمین کو پال رہی ہے. بے شک بے شک. الحمدللہ. چلے بات کو یہاں پہ اگر یہ کھل گئی تو پھر کہیں اور چلی جائے گی. چلے آگے چل. الحمدللہ والعظمت و کبریائی، الحمد میری چادر ہے اور میری کبریائی میری عظمت ہے. والثناء و ثنائی، میں کیسا خالق ہوں کہ اپنی ثنا میں خود کر رہا ہوں. والثناء و ثنائی، میں کیسا اللہ ہوں کہ میں اپنی ثنا خود کر رہا ہوں. خالق نے خطبہ پڑھنا شروع کیا، یہاں جبریل نے جنت کے دروازے پر رک کے خطبہ نکاح شروع کیا. جبریل نے حور و ملائکہ غلمان جنت کے فرشتوں سے کہا یا ایھا الملائکہ والحور والغلمان، اے جنت کے رہنے والوں، اے ساکنان عرش، میں پڑھنے لگا ہوں اپنے سردار کا خطبہ جنت کے دروازے پہ. کیونکہ وہ جو خطبہ پڑھ رہا ہے وہ صرف رسول سن رہا تھا، جو خطبہ جبریل پڑھے گا یہ تمام ساکنان عرش سنیں گے. معصوم فرماتے کہ جبریل نے جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کے خطبہ نکاح پڑھا. جبریل نے کہا الیوم کرعین شمس النیرین، الیوم کرعین شمس المنیرین، الیوم کرعین نور المزین، الیوم الکرعین والنجم الشسدین، الیوم الکرعین والقمر المزین، الیوم زوج اللہ بنفسہ بروحہ وارادۃ مشیتہ وخاصۃ بالخلاصتہ. جبریل نے جنت کے دروازے پہ کھڑا کہا ساکنان عرش، آج وہ دن ہے کہ آج سورج اور کہ دو نور ایک ہو رہے ہیں. آج وہ دن ہے کہ آج دو نور ایک ہو رہے ہیں. آج وہ دن ہے کہ دو منیر ایک ہو رہے ہیں. پہلے نیر کہا پھر منیر کہا. نیر بھی نور کو کہتے ہیں، منیر بھی نور کو کہتے ہیں، لیکن نیر وہ نور ہے جو صرف خود نور ہو. منیر وہ نور ہے جو خود بھی نور ہو، دوسرے کو بھی نور کر دے.
कुरान में रसूल को सिराज मुनीरा कहा है। वाह वाह, ये मुनीर चिराग है, ये खुद भी नूर है दूसरा और आगे भी नूर बांटता है। फरमाया आज वो सूरज मिल रहे हैं जो नैयर भी हैं, जो मुनीर भी हैं। आज वो चांद मिल रहे हैं जिनकी किरणें एक हो रही हैं। आज दो चमकते हुए सितारे आपस में मिल रहे हैं। यहाँ तक तुमने सुना जबरील का खुतबा, हल्क भी सही रहा, सांसें भी सही आई। अगला जुमला मासूम का ना हो, मेरा कत्ल माफ, मिंबर की सदाकत की कसम। जिब्रील ने जन्नत के दरवाजे पे खड़े होकर कहा, ज़वज्जल्ला हो बे नफ्स रूह ही, आज वो दिन है कि अल्लाह का नफ्स उसकी रूह से मिल रहा है। मौला की कसम एक एक जुमला रो के पीछे ला रहा है और अपनी वजाहत मांग रहा है। फरमाया आज अल्लाह की रूह अल्लाह के नफ्स से मिल रही है। मासूम ये जुमला ना कहते कुरान कभी समझ में नहीं आता। जब मासूम ने ये जुमला कहा ना कि जबरील ने कहा कि आज उसकी रूह उसके नफ्स से मिल रही है, मेरे ज़हन में यहाँ रुक गई रूह। फिर मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया, एक जुमले पे आके मैं रुक गया। ये मामला क्या है? जब अभी खिलकत आदम हुई थी, अभी जमीन पे किसी का वजूद नहीं, जब आदम की खिलकत हुई थी, फरिश्ते खड़े आदम के पुतले को देख रहे थे। खुदा ने कहा फाइजा सवैतु व नफख्तु फीहि मिन रूही फक़अू लहु साजिदीन। अभी सजदा न करना, जब मैं इसमें अपनी रूह फूंकूं फक़अू लहु साजिदीन, फिर सजदे में गिर जाना। रख मौलवी के सर पे कुरान रूह से मुराद क्या है? मासूम कह रहे हैं कि आज उसकी रूह उसके बदन से मिल रही है और खुदा कह रहा आदम को सजदा ना करना, पहले सजदा ना करना, जब मैं रूह फूंकूं फिर सजदा करना। इसका मतलब सजदा आदम को नहीं हुआ था, सजदा उस रूह को हुआ था जो आदम में फूंकी गई थी। अब मुझे बोल के बता, दहलीज़े अली पे सजदा करना बिद्दत नहीं, फरिश्तों की नजफ की चौखट के सजदे का। और यहाँ पर मैं अकीदा दुरुस्त करूं, ये ना कहा करो कि ताज़ीमी सजदा है। जो ताज़ीमी हो उसमें इबादत नहीं होती। भाई अली का जिक्र रसूल की हदीस कई बार तुमने मिंबर से सुनी नहीं? जिक्र अलीयुन इबादत, अली का जिक्र इबादत है, सवाब नहीं। जिक्र अलीयुन इबादत, नजर वाला वजह अलीयुन इबादत, अली का चेहरा देखना इबादत, अली का जिक्र करना इबादत, कुरान पढ़ना इबादत। लेकिन ये सारी चीजें वो इबादत हैं, कुरान पढ़ना इबादत है। बंदा बैठ के कागज पे कुरान कुरान लिखता रहे, ये इबादत है? बैठ के कुरान कुरान करता रहे, इबादत नहीं। अल नजर अला बैतुल्लाह अल इबादा, काबा को देखना इबादत है, काबा काबा करना इबादत नहीं, काबा काबा लिखना इबादत नहीं। लेकिन अली वो इबादत है, अली लिखना भी इबादत है, अली पढ़ना भी इबादत है, अली सुनना भी इबादत है, अली अली करना भी इबादत है। मुकम्मल करो जी खुतबा नहीं कर। अल यौमा ज़वज्जल्लाहु बिनफ्सि रूही, आज उसकी रूह उसके नफ्स से मिल रही है। रूह मैंने वजाहत कर दी। अब आओ, अगर किसी का यहीं पे सवाल है कि फिर ये नफ्स कौन है, फिर मैं कुरान से साबित कर देता हूँ। वमिन नास मन यशरी नफ्स हुब्तिगा अल्लाह है, एक ऐसा है जिसने हिजरत की रात सो अल्लाह से तजारत की थी, उसने अपना नफ्स दे दिया था, मर्जियां खरीद ली थी। अब उसका नफ्स उसके पास नहीं और उसकी मर्जियां उसके पास नहीं। अब जिसने अली का नफ्स देखना हो फिर उसे देखे, क्योंकि रहा ही नहीं, सौदा हो गया हिजरत की, उसे नफ्स दे दिया, मर्जियां खरीद ली। अब रजी अल्लाह वहां से नहीं बनना, मर्जियां तो यहाँ आ गई, मर्जियां
दुनिया इसके पास आ गई। और ये नफ्स का इख्तियार है कि रिसालत माब ने फतह मक्का पे जब वो बुत गिराने थे, बुत गिराने का वक्त आया तो मौला अली आगे बढ़े, आगे बढ़ के कहा यूं घुटने टेके, आए या रसूल अल्लाह, बुतों को तोड़े। वो रसूल का कदम जो उठते और मिराज पे जाके रुके, वो कदम उठा। अभी कदम का उठना था, मासूम का जुमला है, मासूम फरमाते हैं जबरील इतनी तेजी से आया कि जबरील ने आके रसूल के पांव के नीचे अपना पर रखा, पर रख के जबरील ने कांपते हुए परों से कहा, आवाज एक कुदरत आ रही है, बित्तहियत व सलाम बाद रसूला व सलातु अला रजुल बिनफ्सिल्लाह, जाके मेरे मोहम्मद को मेरा दरूद और सलाम कहना और उससे कहना मोहम्मद ये क्या कर रहा है, मेरे नफ्स पे अपना पांव रखना। मेरे नफ्स पे अपना पांव रखना है। वाह वाह, उठा हुआ पांव रुक गया, खड़े हुए शाने झुक गए। फरमाया अली तू हुआ, जियो क्योंकि तू एक वक्त में मेरा भी नफ्स है। यहीं पे जुमला रोका जाए तो बहुत आगे तक जा सकती है कि नफ्स कहां कहां कैसे कैसे इस्तेमाल हुआ और कैसे कैसे खुदा ने अपने नफ्स को इस्तेमाल किया। जबरील ने कहा कि अल यौमा ज़वज्जल्लाहु नफ्स बे रूहिही, आज उसकी रूह उसके नफ्स से मिल रही है। अगला जुमला वसूल करना, जबरील ने कहा अल यौमा ज़वज्जल्लाहु बे इरादत मशीयत ही, आज अल्लाह ने अपने इरादे का अपनी मशीयत से अक्द कर दिया। आज उसका इरादा उसकी मशीयत से मिल गया। अगला जुमला पे आगे जबरील ने कहा वल अल यौम ज़वज्जल्लाहु बिल खासते बिल खलासते, आज वो दिन है, मुश्किल बात होगी लेकिन वसूल करना, आज वो दिन है कि उसका खासा उसके खलासे से मिला। लेकिन सिर्फ वाह वाह नहीं, ना ना ना, रायती दाद नहीं लेनी, बात समझेंगे, यहां से दाद आए तो फिर लुत्फ आएगा। आज उसका खासा उसके खलासे से मिल रहा है। अब यहां पे मैं समझाऊं कि खासा क्या है और खलासा क्या है। खासा क्या है? भूख लगती है आपको, ये आपका खासा है। प्यास लगना, ये आपका खासा है। सोना, ये आपका खासा है। यानी कि इंसान के मजाज को उसका खासा कहते हैं। सही, ठीक हो गया? ठीक हो। इसका मतलब कि खासा कहते हैं मजाज को। अब बात आसान हो गई। जबरील ने कहा कि आज तौहीद का मजाज उसके खलासे से मिल रहा है। मजाज रुक गया, अब अगला खलासा समझ में आएगा तो फिर आपको मुकम्मल बात समझ में आएगी। मैं करूं 1 घंटा तकरीर, 1 घंटा तकरीर करने के बाद में कोई पूछे कि मजलिस का खलासा क्या था, तो एक ही जुमला कहा जाएगा जी, अक़दे सैयदा पढ़ा गया। जो बिखरी हुई तकरीर को समेट दे उसे खलासा कहते हैं, जो बिखरी हुई तौहीद को इकट्ठा कर दे उसे अली कहते हैं। जियो जियो, बिखरी हुई तौहीद, यहाँ पर परेशान नहीं होना। वमन अरादन यंज़ुरु इला आदम फी इल्मिही, कुतुब शिया की मोतबर हदीस जो मिंबर से पढ़ी जाती है। रसूल ने फरमाया अगर तुम में से किसी ने आदम का इल्म देखना हो, नूह का इल्म देखना हो, इब्राहिम, तमाम नबियों के औसाफ, सिर्फ नबियों के नहीं, अगर तुमने उसकी रहमीयत देखनी हो, उसकी रहमानियत देखनी हो, उसका जलाल देखना हो, फल यंज़ुरु अला वजहि अली इब्न अबी तालिब, कुछ ना देखो, सिर्फ अली को देखो। आज उसका खासा उसके खलासे से मिल रहा है। 2 दरख्त हैं अर्श पे, एक को कहा जाता है सिदरा, एक को कहा जाता है शजरा तूबा। सिदरा है चौथे आसमान पे, शजरा तूबा है जन्नत के अंदर। मासूम फरमाते हैं कि जब जबरील ने खुतबा अमीर का ये खुतबा अक़द में अमीर का ये लफ्ज पढ़ा, ये लफ्ज पढ़ने के बाद हातिफ़ गैबी से नूर वहदत से आवाज आई कि जबरील
हुरान जन्नत और मलाइकान जन्नत को कहें कि सारे शजरा तूबा के नीचे इकट्ठे हो जाएं, सारे शजरा तूबा के नीचे इकट्ठे हो जाएं। खुदा ने शजरा तैयबा शजरा तूबा को हुक्म दिया, यहां से नूर के मोती गिरा। शजरा तूबा ने नूर के मोती गिराने शुरू कर दिए। मासूम फरमाते हूर और फरिश्तों ने वो चुन लिए। हूर और फरिश्तों का वो चुनना था। उन्होंने कहा मालिक जब रहते ही नूरानी जन्नत में, फिर हमें नूर के मोतियों की क्या जरूरत थी? इतने बड़े अक्त में हमें इतना छोटा इनाम दे रहा है कि शजरा तूबा के नूर के तूने ये कतरे हमें दे दिए। जब हम रहते ही नूरानी जन्नत में, आवाज आई ये जन्नत में शजरा तूबा के नूर के कतरे नहीं बल्कि ये जन्नत के परवाने हैं। मौला ये किन के लिए हैं? फरमाया इल्ला बिहुब्बिल ज़हरा व अलिया, क़यामत तक के लिए जो अली और ज़हरा का मुहिब पैदा होगा, ये उनकी जन्नत के परवाने अभी दुनिया में आए नहीं है। मासूम फरमाते हैं कि क़यामत का मैदान होगा, जब हमारे शिया दरवाजे जन्नत में पहुंचेंगे तो फरिश्ते वही नूर के मोती लेके दरवाजे पे खड़े होके कहेंगे हम तुम्हें सलाम करते हैं इसलिए कि तुम अली की शादी के मौके में मौजूद नहीं थे, लेकिन तुम्हारा अनाम मौजूद वाह भाई वाह, बस को समझ में आ रही? क्योंकि इनके यहाँ मवाजना नहीं हो सकता। अगर मैं कहूँ कि मवाजना करूँ कि सैयदा बुलंद या कायनात का बादशाह अली बुलंद, ये मवाजना हो ही नहीं सकता। चार जगहों पे इन्होंने आपस में मुबाहसा नहीं किया, मुबाहला नहीं किया। इन्होंने चार जगहों पे एक दूसरे को अपना तारुफ करवाया। वो चारों चीजें कुतुबे शिया में मिलती हैं। एक जगह पे मौला ने सिर्फ एक ही जुमला कहा था। मौला ने अपना तारुफ करवाया। मौला ने फरमाया ज़हरा मैं वो अली हूं जो उसके होने की संद है। बेशक ये जुमला अली ने कह दिया। एक जुमले का मुफाखरा, फख्र करना, एक दूसरे को अपनी इज्जत बढ़ाना। इसका मतलब ये नहीं होता किसी को नीचा करना मकसद नहीं होता। मतलब दो पढ़े लिखे आपस में बैठ के तूने कितना पढ़ा, वो अपनी डिग्रियां बताएगी, अपनी डिग्रियां बताए, इसका मतलब होता है मुफाखरा। अली ने फरमाया कि बतूल मैं वो हूँ जो उसके होने की संद है। इतना जुमला कहना था कि सैयदा का एक ही जुमला आया, अली के चेहरे में मुस्कुराहट आ गई। बीबी देख के कहती है अली आपने ये कहा कि तू उसके होने की संद है? बीबी ने उठ के खड़े होकर कहा अली तुझ में और मुझ में ये फर्क है, अगर मैं ना होती तुझ में और उसमें कोई फर्क ना होता। उसके होने की संद है। बीबी ने कहा मैं उसकी बका हूं। क्या बात, मैं बकाए तो ही। चार जगहों में मुफाखरा हुआ है। एक जगह पे एक सत्र का, दूसरी जगह पे 4 सत्रों का, तीसरी जगह पे 19 सत्रों का, और एक इतना बड़ा मुफाखरा है जिसे उल्मा ने लिखा कि इसकी कसरत की वजह से इसे मुकम्मल तहरीर नहीं किया जा सका। एक जगह पे अली और सैयदा आपस में एक दूसरे के सामने बैठे, आमने सामने बैठे। अल्लाह का बतूल किसी को खबर नहीं कि मैं अली कौन। आज मैं तुझे ना बताऊं कि मैं अली कौन। कैसा वो माहौल होगा जहां खतीब अली होगा, सामने ज़हरा होगा। ये सब जरा वो नूरानियत और रूहानियत कैसी कि जहां खतीब खुद मौला और सामने ज़हरा। मैं कूफे के मिंबर पे जाके बैठता हूँ, किसी को नहीं खबर कह रही क्या। मैं मदीने की गलियों में रहा, किसी ने नहीं पहचाना कह रही क्या। मेरा जी चाहता है कि आज बतूल मैं तुझे बताऊं कि मैं क्या हूँ। सैयदा ने कहा आज बता, मैं भी सुनना चाहती हूँ अली। वाह। और सिर्फ आपने सुनाना ही नहीं, बाद में मुझसे भी पूछना है कि मैं कौन। अली ने फरमाया सैयदा मैं वो अली हूँ जो ये भी जानता है जो हो चुका और जो ये भी जानता है जो होगा। मौला ने अपना तारुफ करवा दिया। बतूल मैं वो अली हूँ जो ये भी जानता है जो हो चुका, जो ये भी जानता है जो होगा। सैयदा मुस्कुरा कहती मैं वो ज़हरा हूँ जो ये भी जानती हूँ जो होगा ही नहीं। चीज़ अभी वजूद में नहीं आई, मैं तो उसे भी जानती हूँ। यहाँ किताबें लिखती है मौला ने अपनी अबा को खोला, अबा को खोल के अन-नज़्रु इला यदैहि, ज़हरा मेरे हाथों में। बीबी ने हाथों को देखा, फरमाया सदके हो जाए बतूल इन हाथों पे। अल्लाह ने फरमाया ज़हरा ये वो हाथ है जिन्होंने आदम को बनाया था।
پریشان تو نہیں ہوں؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. تم آپ خاموش ہو جائیں. کیونکہ قرآن میں یا ابلیس و مناک ان تسجد لما خلقت بیدی، ابلیس تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے. واہ 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 جی واہ 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 بالکل ٹھیک. جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے. اب اس میں لمبی بحث ہے، سنی کتابوں سے ثابت ہے کہ ید اللہ علی ہے، سنی کتابوں سے ثابت کہ ملعون کے پاس ایک شخص کیا تھا، اس نے کہا میں حج کا طواف کر رہا تھا، میں نے طواف کر رہا تھا، یا علی نے میرے چہرے پہ تھپڑ مار دیا. اس نے اس کے بائیں چہرے پہ تھپڑ مارا. اس نے کہا میں شکایت دائیں کی لے کے آیا تھا، تو نے بائیں پہ تھپڑ کیوں مار دیا؟ اس نے کہا بدبخت شرم نہیں آتی تجھے؟ اللہ کی آنکھ نے دیکھا تھا، اللہ کے ہاتھ نے مارا. محدث ذہبی نے لکھا اپنی کتاب، فرمایا بطول میں ولی ہوں، یہ وہ ہاتھ ہیں جنہوں نے آدم کو خلق کیا. سیدہ اٹھی، علی کے ہاتھوں کو قرآن سمجھ کے بوسہ دیا، فرمایا صدقے ہو جائے قریب ان ہاتھوں کے، لیکن یہ بات تو بتائیں آدم اکیلا تو خلق نہیں ہوا. واہ 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 جیو جیو جیو. ساتھ ایک مصنوعی، کیونکہ آدم کا عقد توحید نے نہیں پڑھا. آدم کا نکاح جبکہ اس وقت آدم کا جب زمین پہ بھیجا جانے لگا، علامہ مدرسی نے لکھا پہ جب زمین پہ بھیجا جانے لگا تو آدم نے کہا میرے اللہ یہ عورت مستور میرے ساتھ جا رہی ہے، فرمایا خبردار نکاح نہ کرنا، بھی تجھ پہ حرام ہے. میرے اللہ پھر فرمایا نکاح ہوگا. نکاح کون پڑھے گا؟ میرے مالک تو. فرمایا میں تجھ جیسے کا نہیں پڑھتا. معصوم فرماتے ہیں کہ پیچھے سے ایک نور کی آواز آئی، انا نور محمد، میں نور محمد ہوں، میں تیرا نکاح خان ہوں. نور محمد نے آدم کا نکاح پڑھا. اب نکاح میں صرف نکاح خان نہیں ہوتا، ایک لڑکے کا وکیل، ایک لڑکی کا وکیل، دو عادل گواہ، ایک نکاح خان. جب تک 5 نہ ہو نکاح نہیں ہوتا. واہ واہ جیو جیو جیو. نسل حلال کرنے کے لیے 5 کا ہونا ضروری ہے. جیو جیو. نکاح خان رسول، آدم کی وکالت کے لیے علی، حوا کی وکالت کے لیے سیدہ، دو برابر کے گواہ حسن اور حسین. سبحان اللہ. واہ بھائی واہ. جب مکمل ہو گئے تو آواز خدائی آدم حق مہر. مالک جو بدن پہ کپڑے تھے وہ تو نے جنت میں اتار لیے، حق مہر کہاں سے دوں؟ فرمایا صلی اللہ خمستین مرتین، ان 5 پہ 5 دفعہ درود پڑھ. واہ بھائی واہ. حوا تجھ پہ حلال ہوگی. اور نکاح میں حق مہر ایک معجل ہوتا ہے، غیر معجل ہوتا ہے. ایک موقع پہ ادا کیا جاتا ہے، ایک بعد میں بھی ادا کیا جاتا ہے. آدم نے کہا میرے مالک ادا ہو گیا. فرمایا نہیں آدم، تیرے ایک انسانیت چلنی ہے، تیری ایک آدمیت چلنی ہے، تیری ایک سنت، ایک طریقہ، ایک رائج رواج چلنا ہے. آدم معجل تو نے کر دیا، غیر معجل کا طریقہ بھی بتا کے جا. میرے مالک غیر معجل. فرمایا جو بعد میں ادا ہونا ہے. بعد میں کیسے ادا کروں گا؟ فرمایا تو نے نہیں ادا کرنا، یہ تیری نسل ادا کرے گی. جو بھی تیرا بیٹا ہوگا، جو بھی نسل آدمیت میں سے ہوگا، جو بھی نسل انسانیت میں ہوگا، اس پہ واجب ہوگا کہ وہ اپنے ماں اور باپ کا حق مہر ادا کرے. وہ اپنی ماں اور باپ کا حق مہر ادا کرے. نصوم فرماتے آدم نے کہا میری اولاد میں لائق بھی ہوں گے، نالائق بھی ہوں گے. فرمایا جو بھی تیرا لائق بیٹا ہوگا وہ تیرا اور حوا کا حق مہر ادا کرے گا. مولا وہ کیسے ادا ہوگا؟ فرمایا الا فضائل علی ابن ابی طالب یقرا، ان سے کہنا وہ علی کے فضائل پڑھتے رہے، تیرا حق مہر ادا. جیو جیو. سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات. کیا کہنے جیو. اس معصومہ کے. فرمایا زوج اللہ بالنفس ہی بالروح، آج اس کا نفس اس کی روح سے مل رہا ہے. اتنا جملہ کہنا تھا. یا جبریل نے ادھر سے خطبہ عقد کو مکمل کیا، نور توحید سے آواز آئی جبریل مکمل ہو گیا، مولا مکمل ہو گیا. فرمایا مارج البحران یلتقیان، آج میں نے 2 عصمت کے دریاؤں کو آپس میں ملا دیا. ملانے کے بعد آواز خدا جبریل تو نے خطبہ عقد کہاں کھڑے ہو کے پڑھا؟ مالک تیری جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کے پڑھا. میں نے کہاں پڑھا؟ فرمایا تو نے عرش پہ پڑھا. فرمایا جو جبریل آج پھر ہاتھ پہ غیبی سے ندا آئی. جبریل آج میں کرسی وحدت پہ یہ اعلان کبریائی کرتا ہوں کہ میں نے پڑھا ہے علی اور بطول کا عقد عرش پہ بیٹھ کے، تو نے خطبہ دیا ہے جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کے. جبریل میں وعدہ کرتا ہوں میں عرش علی اور زہرا کے نام کرتا ہوں، تو جنت ان کے بیٹوں کے نام کرتا ہوں.
बेटों से। जियो बिस्मिल्लाह बेशक बेशक बेशक। और ये जो हज़रत अबू तालिब ने निकाह पढ़ा रसूल ने, ये खुदा ने ये एहसान के बदले हुए हैं। फरमाया कि अबू तालिब तूने मेरे नबी का निकाह फर्श पे पढ़ाया था, मैं तेरे अली का निकाह अर्श पे पढ़ाया। वाह 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 जियो। तूने मेरे नबी का नाम मोहम्मद रखा, मैं इसका नाम अली रखूंगा। लेकिन अबू तालिब एहसान का बदला एहसान की सूरत में इससे बढ़ के दूंगा, क्योंकि दो हस्तियों के बराबर एहसान थे दीन इस्लाम पे, एक जनाब खदीजा और सरकार इमरान। और खुदा ने पर्दा वहादत में बैठ के कहा था, मेरा हबीब अगर तेरे बाद नबी आने की गुंजाइश होती, एक नबी बीबी खदीजा को दे देता, एक नबी अबू तालिब को दे देता, लेकिन तेरे बाद सिलसिला नबूवत बंद है, सिलसिला इमामत को शुरू करना है। इमाम एक है, घर दो है। अगर इमाम अबू तालिब को दूंगा नाराज खदीजा हो जाएगी, अगर इमाम खदीजा को दूंगा नाराज अबू तालिब हो जाएगा। फिर ऐसे करते हैं, एक घर से बेटा लेते हैं,